a good overlook of these 44 Vad Margas, which 22 of which we have completed yesterday, you will come to know that these are the different what you call rule points. These are the rules and these are the points which you can use in a debate. तो संशय के बाद we come to प्रयोजन. यदर्थम कार्येषु आरम्भ्यतम आरंभा. Whatever you do to start something, whatever you do to start something is known as prayojan. The first steps to start a task. So in Vadamarga, what will be your task be? Probably if you want to go to a debate, you'll the task will be learn the topic, then take out points, then detail them out, then understand what the other person is going to speak about, then take out the points which you feel are not acceptable to you. So this is a prayojan. So this is a prayojan of Vada Marga. In Chikitsa, the prayojan is telling about the Pathya, Ahar, Vihar and the Nidan to the patient. So, for example, in Chikitsa, start diet, do exercise to control diabetes is the prayojan. Prayojan is something, the first steps to start a task is the prayojan. Savyabhichar, the 24th Vad Marga is Savyabhichar. What is Savyabhichar? Vyabhichar means that when there is more than one option. So Vyabhichar means when there is more than one option. So Yat Vyabhicharanam Savyabhichar. So while doing something or while discussing something, you don't pinpoint or you don't rely on or you don't deduce a particular result or a particular deduction from the topic, but you keep all options open. So this is what you do even in a discussion which we usually do. So for example, if we are thinking about whether to go out during Corona for taking sabji, so we keep all options open. That okay, सब्जी वाले को घर पे बुलाते हैं या पास वाले ठेले से जाके सब्जी ले लेते हैं या मार्केट में एक ही बार जाके हफ्ते का सब्जी ले आते हैं. So that is savyabichar. Savyabichar means while discussing something, you keep all options open. You don't go ahead with one option. Now this savyabichar is something which is very nicely used in chess. When you play chess, you have all the pieces because there also you have an opponent. There also you have to have a strategy. There also the opponent has a strategy. So you keep all options open while playing chess. So similarly, while discussing also, you have to keep all options open. You don't deduce, rely on, or finalize on one result till the end, or as you go to the end, you reduce the number of options. This is also very nice in reversing the strategy of discussion. So Savyabhichar is something which you can employ for reversing the strategy of discussion. For example, you have 4 strategies and you are moving ahead with only one strategy. You have moved to such an advanced stage that the opposite person now falls falls over you. I mean, he dominates you over that strategy. So now you have to come back all the way and start another strategy for discussion. So they say that all your discussions should be savyabichar. So keep all options open. Then is jitnyasa. Jitnyasa nama pariksha. Jitnyasa is what? Jitnyasa is curiosity. Jitnyasa nama pariksha. Jitnyasa means curiosity. Curiosity like something which a very young child has in his mind. ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, why these things happen, why that things happen. So this is a type of curiosity you should have in your mind during the debate. Why is the curiosity important? That is because of two things. First is
when you are curious about whatever the other person is telling, you are acquiring knowledge. The second thing is you are also ना ना testing. काय नसले वाला हो काय नसले वाला बहुत सारे लोग आ गए डिस्कशन में. Anyway, so jignasa means curiosity. When you keep curiosity, the opposite person says something and you curiously ask that what is the test you have applied, और आपने ये चीज को deduce कैसे किया, how you have deduced the result, or how you have come to the result, or how you are saying that this is true. So जिज्ञासा से first of all your curiosity शांत हो जाती है. So you would, the only thing which can, the only thing which can रिड्यूस और जिज्ञासा का शमन करने के लिए एक ही चीज है, दैट इज नॉलेज. सो व्हेन यू, योर क्यूरियोसिटी गोज अवे और रिड्यूसेस, automatically you get knowledge about that aspect. Plus the second thing is, when you are curious about the other person's discussion, then he also feels that you are learned. वो अपने स्टेप्स जो है वो थोड़ा सा जो एग्रेसिव होगा वो पैसिव हो जाएगा, या फिर कॉन्फिडेंट होगा वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर लेगा. सो जिज्ञासा इज क्यूरियोसिटी. बी क्यूरियस अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग अबाउट द डिस्कशन, especially when you are a part of the discussion. So there are different types of parikshans mentioned in Ayurveda which can put up curiosity. Bala pariksha, desha pariksha, kala pariksha, vaya pariksha. These are the parikshans of when you are treating the patient. Then ahara pariksha, then different lakshan pariksha of the dosha. So all these different parikshans are mentioned. Even mala pariksha. So these parikshas, you have to be very curious and you have to put your words or put your thoughts or put your curiosities, put your questions with the help of this jitnyasa. Now, if you see in this particular slide, prayojan, samshay, savyabichar, jitnyasa, these are all ways. These are all ways on how you are trying to control the discussion and bringing it to your end. Okay, so now we go to the next, that is व्यवसाय. व्यवसायो नाम विनिश्चय. किसी चीज पे निश्चय करना, किसी चीज को डिड्यूस करना इज व्यवसाय. सो वाइल गोइंग ऑन द डिस्कशन यू हैव टू मार्क योर, जैसे हम समझो कलोल से अहमदाबाद जा रहे हैं, तो कलोल से अहमदाबाद हम जा रहे हैं, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वी विल फाइंड milestones. We will find milestones. Ahmedabad 20 kilometer, Ahmedabad 15 kilometer. So vyavasai is nothing but making a milestone. So why is vyavasai essential? Why is vyavasai essential? Vyavasai is essential to reduce the time of discussion. So you are explaining something, and while explaining you put a milestone that okay sir, now I have explained. Did you understand? Yes. So you also agree that Gulma is a Vata Pradhan Vyadhi, or Gulma requires Sneha, or Sneha is given by oil. So you agree. So that is a Vyavasai. That means both the parties during the course of discussion agree to something. Now this agreement is, we had one more, Abhyupagam Siddhanta. We had one more, which is Abhyupagam Siddhanta. There also both the parties are agreeing to something, but that is before the start of the discussion. Vyavasai is both the parties are agreeing during the time of the discussion. So Vyavasai mein what happens is, you are explaining something and you deduce something and you put it as a milestone कि सर देखो अब आप एग्री कर रहे हो, अहमदाबाद 20 किलोमीटर रह गया, ठीक है, अब सिर्फ कम हो सकता है, हम जब आगे जाते हैं तो सिर्फ कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता. सो वी कांट गो बैक फ्रॉम समथिंग विच वी हैव डिड्यूस्ड. जिस चीज का विनिश्चय कर लिया है, जिस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है ड्यूरिंग द डिस्कशन, उसको हम वापस से रिजेक्ट नहीं कर सकते या उसके पीछे नहीं जा सकते. सो this is Vyavasai. Vyavasai is deducing something during the discussion.
Then you have Artha Prapti. Artha Prapti. The 27th Vadamarga is Artha Prapti. What do you mean by Artha Prapti? Yatra अनेक उक्तानां परस्य अर्थस्य अनुक्तस्य सिद्धा. मतलब किसी चीज को यत्र अनेक उक्तानां बहुत बार कहने के बाद परस्य अर्थ मतलब उसके वर्ड्स के परे जो कुछ भी अर्थ है, जो अनुक्त है, जो बोला नहीं गया या जिसका वर्णन नहीं है उस लाइन में, उसको सिद्ध करना इज अर्थ प्राप्ति. उसको पकड़ना या उसको समझना इज अर्थ प्राप्ति. So Artha Prapti is nothing but understanding in between the lines during the discussion. ठीक है. जैसे you are discussing with probably you are discussing with your friend कि चलो I don't know, I am not very fond of looking at movies in a theater, but जब भी Amazon Prime पे या किसी पे मूवी आ जाता है तो I see movies, so I am not very I don't रिकलेक्ट. और अभी मेरे ख्याल से 6 महीने से तो कोई मूवी आया ही नहीं होगा क्योंकि थिएटर्स ही बंद है. तो अगर आप किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि हमको इस मूवी में जाना है, यू आर डिबेटिंग, चलते हैं मूवी में चलते हैं, तो फ्रेंड आपको ये बोल रहा है अरे परसों एग्जाम है, परसों एग्जाम है, परसों एग्जाम है. इवन यू नो दैट परसों एग्जाम है, लेकिन परसों एग्जाम है इस लाइन के इन बिटवीन व्हाट इज द अर्थ ही इज सेइंग? द अर्थ ही इज सेइंग दैट आई एम रिलक्टेंट टू कम टू द मूवी. I am reluctant to come to the movie. So something which he is saying, which doesn't mean that he doesn't want to come to the movie. He is just telling you something, but ultimately the whole prayojan or the whole purpose of telling those is to give you a different meaning between the lines. Different meaning in between the lines. So Artha Prapti is getting or understanding the meaning between the lines. So this is the 27th Vad Marga, which is Artha Prapti. Then we have Sambhav. Yat Sambhavati Satasya Sambhavaha. So Sambhav means the creator group. Sambhav means the creator group. Now what do you mean by the creator group? Creator group का मतलब जिस चीज से जो चीज संभव है उसी को बोलना या उसी को मानना. असंभव मतलब इट कैन नॉट बी पॉसिबल. जैसे कल मैं आम की गुठली को जमीन में लगा दूं तो नारियल का पेड़ उग सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज असंभव. संभव मीन्स यत संभवती सतस्य संभवा. तो कुछ संभव भाव है, कुछ संभव भाव है. क्या हम किसी, अब जैसे पाउडर है, हम पाउडर लगाते हैं चेहरे में, तो वो जो पाउडर है वो चेहरा हमारा गोला करती है. हम उसके जगह विम पाउडर या और कोई पाउडर, ओडोपिक पाउडर जो बर्तन घसने के लिए यूज होती है, जो बर्तन को भी चमकाती है, क्या हम उस पाउडर को चेहरे पे लगाएंगे? नहीं. क्यों? वो भी तो साफ करती है. तो बिकॉज चेहरे को संभालना, चेहरे को गोरा करना इज नॉट पॉसिबल विथ ओडोपिक और विम पाउडर. हम चेहरे पे लक्स साबुन लगाते हैं, विम साबुन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि दैट इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द task which we want to achieve. That is not the creator of the task what we want to achieve. So sambhav matlab telling or accepting the creating task which we want to achieve. ठीक है. यहाँ तक किसी को 22 से 28 तक किसी को कोई डाउट या किसी को, एंड दिस ऑल इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन. इसके रेफरेंसेस क्यों नहीं आ रहे? वाई देर आर नो रेफरेंसेस? जैसे हमने तंत्र युक्ति सीखी तो तंत्र युक्ति में हमने ग्रंथ के रेफरेंसेस दिए, ग्रंथ के रेफरेंसेस दिए कि ये जो है ये इस तंत्र युक्ति का रेफरेंस है. जैसे अधिकरण है तो तंत्राधिकरण में अधिकरण जो है ये अधिकरण के 4 प्रकार हैं. एक शास्त्राधिक या तंत्राधिकरण, फिर ग्रंथाधिकरण, फिर
अध्याय अधिकरण और फिर वाक्य अधिकरण। तो हर अधिकरण का हमने रेफरेंस दिया उसी ग्रंथ से। इसका हम रेफरेंस ग्रंथ से इसीलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि दिस ऑल आर द रूल्स। हमारे ग्रंथ में कोई बड़ा डिबेट हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए हम ग्रंथ से इसका रेफरेंस नहीं दे पा रहे। व्हाई वी हैव टू गिव रियल टाइम और रियल लाइफ रेफरेंसेस फॉर ईच ऑफ द वाद मार्ग, because these vada marga are something which we still use but we don't know that we are using। जैसे अर्थ प्राप्ति का मैंने बता दिया, तो वैसे ही संभव इज समथिंग पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज व्हाट वी से ड्यूरिंग अ डिस्कशन, दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। कि अरे वो सर हैं, उन्होंने मुझे 100 में से 100 मार्क दिए, तो चल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो दैट इज नॉट अ क्रिएटर ग्रुप, ही इज नॉट अ गुड टीचर और ही इज नॉट अ वेरी लीनियंट टीचर। तो असंभव, तो जो चीज संभव नहीं है वो संभव असंभव है। जो चीज संभव है इट कम्स इन द क्रिएटर ग्रुप। और इसीलिए जैसे गर्भ संभव का यहाँ उदाहरण दिया है, कल मैं आपको बोलूं गर्भ के संभव के लिए क्या चाहिए? माता, पिता, आत्मा, मन और स्थान, अंबु, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, 4 चीज चाहिए। ऋतुकाल, क्षेत्र, अंबु और बीज। बीज में 2, माता के बीज, पिता के बीज। तो कल को मैं बोलूं कि अरे वो जो कोई समझो कोई फीमेल है, तो विदाउट हैविंग एन इंटरकोर्स विद अ मेल शी गॉट प्रेग्नेंट, तो आप बोलोगे छह संभव ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर ग्रुप और द क्रिएटर ग्रुप इज लैकिंग। सो दिस इज हाउ संभव फंक्शंस। उसके बाद अनुयोज्य, द 29th वाद मार्ग। इसके बाद जो 30th करेंगे उसके बाद सिर्फ 14 रह गए। अनुयोज्य अनुयोज्य मतलब अ क्वेश्चन विच इज अटैच्ड टू द क्वेश्चन, attached to a statement। A question which is attached to a statement is anuyojya। Anu means sub, yojya means yojana। Anu means sub, 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 sub। So just as we have a substrate, substrate means a part of a liquid which goes down, so that is a part of a liquid but it settles down, that is a substrate। तो अनुयोज्य मतलब a part which is not explained in a statement for which we have to ask another question। तो यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तद, तो a statement which doesn't provide complete information is anuyojya। A statement which doesn't provide complete information is anuyojya। ठीक है? तो जैसे आपके फ्रेंड ने, वी आई एम मोर ऑब्सेस्ड विद मूवीज, यू नो दैट। तो जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि अरे कल हम चलते हैं ये पिक्चर देखने के लिए, तो क्या आपको पूरा ज्ञान हो गया उस वाक्य से? नहीं। यू डोंट नो विच पिक्चर, you don't know when you are going to go, you don't know where you are going to go। So all these things are anuyojya questions। कब जाना है, कहाँ जाना है, किस पिक्चर के लिए जाना है, किसके साथ जाना है, ठीक है, टिकट कौन खरीदेगा, तू खरीदेगा या मैं खरीदूंगा। So these are all anuyojya questions। So you got some knowledge, but that knowledge is, कल पिक्चर जाना है इतना नॉलेज तो मिल गया, but that knowledge is half-hearted or the knowledge is not complete। So a repeat question is required, to understand that knowledge, that is anuyojya। Now why this anuyojya is important? This anuyojya is important because it may so happen that you pass on some knowledge, so you have to see all these rules। Why are rules framed for cricket or why are rules framed for tennis or table tennis? That okay, इतना गेम, 5 का गेम, 10 का गेम, या इतने पॉइंट्स, 4 पॉइंट के बाद ड्यूस हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। All these things, why they have formed the rules?
to reduce the time and effort of the parties who are participating. ठीक है, 50 ओवर्स या अभी आईपीएल चल रहा है तो 20 ओवर्स. Why 20 overs? To frame a rule and regulation for the game. राइट तो अनुयोज्य वाक्य जो है वो भी एक रूल है दैट यू शुड नॉट से एनी अनुयोज्य वाक्य. You should say only those vakyas which are clear and correct in meaning and give proper knowledge. At the same time, you should not refrain yourself from asking questions for any अनुयोज्य वाक्य. जैसे किसी ने बोल दिया कि इस रोग में तो इसीलिए इस रोग में शोधन अपेक्षित है, तो तुरंत आपका क्वेश्चन क्या आएगा, सर कौन सा शोधन, वमन करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए, बस्ती देना चाहिए या नस्य करना चाहिए, कौन सा शोधन आपको एक्सपेक्टेड है. तो दिस इज अनुयोज्य वाक्य. अनुयोज्य वाक्य को समझ के अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वी गेट पॉपुलर. हमारा ज्ञान जो है वो लोगों को दिखता है कि अरे इसको तो शोधन के इतने प्रकार पता है या शोधन में इसको ज्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए. So you get popular. So that is anuyojya. Anuyojya में you get some knowledge, but that knowledge requires a repeat question to be sure about that knowledge. अननुयोज्य. अननुयोज्य मतलब एक ही लाइन में सब कुछ बता देना. अनुयोज्यम विपर्यणः. अनुयोज्यम विपर्यणः मतलब अनुयोज्य के विपरीत. तो एक ही लाइन ऐसे बोलना या पहली लाइन में ही सभी डाउट्स क्लियर कर देना. जैसे अगर मैं कहूं कि कल हमको 3 बजे कोई XYZ मूवी, मुझे मूवी समझो वॉर मूवी, कल हमको 3 बजे वॉर मूवी देखने को जाना है. हमारे साथ अनिल, सुनील और कोई एक 3 बंदे हैं. इस थिएटर में हम जाएंगे और हर आदमी अपना अपना टिकट खुद लेगा. अब बोल चलेगा कि नहीं. ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन with this information what happens is all the doubts are cleared. So your vakya whatever you say should be ananuyojya. Ananuyojya means there is no further discussion or no further questions required. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये रोग असाध्य है, तो आप उसको ये कर सकते हो क्या कि सर असाध्य है तो शोधन करना चाहिए या शोधन नहीं करना चाहिए. बिकॉज दैट इज अ प्रिंसिपल. अधिकरण में ऑलरेडी आ गया कि इट इज अ वेल नोन सिद्धांत दैट असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए. तो अगर कोई पूछेगा कि सर इसमें कौन सा शोधन करना चाहिए, तो आप तुरंत उस पर चढ़ सकते हो. क्या भाई तुमको इतना भी पता नहीं है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए. तो अननुयोज्य वाक्य करने से आपका जो पक्ष है, आपका जो पॉइंट है या आपका जो वे ऑफ डिबेटिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है. तो अनुयोज्य और अननुयोज्य. उसके बाद आता है अनुयोग. अनुयोग मतलब आस्किंग अ क्वेश्चन टू द प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञा याद है, प्रतिज्ञा मतलब हाइपोथेसिस. ठीक है, प्रतिज्ञा मतलब हाइपोथेसिस कि आई एम गोइंग टू प्रूव समथिंग और आई एम गोइंग टू डिबेट ऑन समथिंग, दैट इज प्रतिज्ञा. तो इट इज द व्हाई विच इज आस्क्ड टू द प्रतिपक्ष इन द प्रतिज्ञा. पक्ष इज द टॉपिक और द सब्जेक्ट. सो it is the why which is asked to the paksha which is अनुयोग. जैसे मैंने कहा कि सर मैं तो आज उपास करूंगा, तो प्रतिज्ञा इज मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं उपास करूंगा. तो अनुयोग इज why. अब ये अनुयोज्य वाक्य है कि मैं उपास करूंगा, ये क्लियर हो गया सर. इस लाइन में मैं उपास करूंगा, इसमें क्लियर हो गया. इसका मतलब मैं कुछ नहीं खाऊंगा. तो अगर मैं उपवास करूंगा ऐसे मैंने बोल दिया तो आप ये बोलो फिर क्या खाओगे उपास में. अरे क्या उपास करूंगा बोला तो है. तो अननुयोज्य वाक्य हो गया. तो ऐसे अनअनुयोज्य प्रतिज्ञा को
वाई क्वेश्चन पूछना इज अनुयोग, अननुयोज्य प्रतिज्ञा को वाई क्वेश्चन पूछना इज अनुयोग। क्यों उपास करेंगे, क्यों उपास करेंगे? तो दिस इज अ वाई यू आर गोइंग टू, why you are going to debate on this topic, or why you are going to put forth your views on this topic is अनुयोग। जैसे अनुयोज्य और अननुयोज्य आया, वैसे ही अनुयोग और प्रत्यनुयोग है, लेकिन ये प्रत्यनुयोग जो है दैट इज नॉट अपोजिट ऑफ अनुयोग, वो अनुयोग के उलट नहीं है। अनुयोगस्य अनुयोगाः तथा, मतलब अनुयोग का अनुयोग। इसके पहले हमने देखा था, देखिए इसके पहले हमने देखा था कि कैसे, कहाँ गया वो, ओके शायद यहाँ नहीं। प्रत्यनुयोग मतलब एक क्वेश्चन, अनुयोज्य में ही देखा था। अनुयोज्य मतलब किसी क्वेश्चन को पूछना, तो प्रत्यनुयोग मतलब सब का सब क्वेश्चन, सब का सब क्वेश्चन इज प्रत्यनुयोग। अनुयोगस्य अनुयोगः मतलब वाई को हाउ पूछना। ठीक है, क्यों करेंगे उपास? तो भाई मुझे आज अजीर्ण हो रहा है, इसीलिए मैं उपास करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उपास? मैं सिर्फ पानी लूंगा या उष्णोदक लूंगा, कोष्ण जल लूंगा, या मैं कुछ भी नहीं लूंगा, तो दैट इज अ प्रत्यनुयोग। प्रत्यनुयोग मतलब वाई को अलग से हाउ पूछना। इट इज द हाउ आस्क्ड टू द हेतु, हेतु को हाउ का क्वेश्चन पूछना इज प्रत्यनुयोग। सो अनुयोग का अनुयोग इज प्रत्यनुयोग। आई एम गोइंग टू डिफाइन दैट देयर आर 3 दोष इन द बॉडी। शरीर में 3 दोष हैं, ये मैं डिफाइन करने वाला हूं। क्यों? कारण ये है कि इन 3 दोषों के अलावा दूसरे कोई भी कार्य शरीर में नहीं होते। अच्छा, तो कैसे डिफाइन करने वाले हैं आप ये 3 दोष? तो जब हम क्यों पूछते हैं उसके बाद ही हम कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि नाउ विथ क्यों वी हैव सम मोर नॉलेज अबाउट दैट अनुयोज्य प्रतिज्ञा। we have some more knowledge about that anuyojya pratigna. तो दिस इज प्रत्यनुयोग। उसके बाद वाक्य दोष। वाक्य दोष इज अ डिफिशियंसी इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में डिफिशियंसी हो तो वो वाक्य दोष है। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस में डिफिशियंसी मतलब क्या है? आई स्कूल, इसमें डेफिशिएंसी क्या है? इसमें डेफिशिएंसी है वर्ब की, द वर्ब इज डेफिशिएंट। और तो ये क्या हो गया? दिस इज अ न्यून वाक्य दोष, मतलब जिसमें किसी एक चीज की डेफिशिएंसी है, आइदर देयर इज नो नाउन और देयर इज नो वर्ब और देयर इज नो प्रेपोजिशन, तो उस हिसाब से एक डेफिशिएंसी इज अ न्यून वाक्य दोष। ओके, 5 प्रकार के अलग अलग वाक्य दोष बताए हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है दैट इज नॉट द सेंटेंस विच वी यूजुअली स्पीक, दैट इज अ सेंटेंस विच आर यूज्ड फॉर डिस्कशन। सो ये पंचावयवी वाक्य होते हैं। पंचावयवी वाक्य मतलब जैसे हमारे नॉर्मल वाक्य में एक नाउन होता है, एक कर्ता होता है, कर्म होता है, कार्य होता है, तो वैसे ही पंचावयवी वाक्य जो है इसमें एक हेतु होता है, दृष्टांत होता है, उपनय होता है, निगमन होता है। तो ये 5 अलग अलग चीज जो है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव वाले वाक्य होते हैं। मतलब किसी भी चीज को प्रूव करना है तो आपके पास उस वाक्य में या उस डिस्कशन में ये 5 चीजें होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास उसमें से कोई एक चीज नहीं है, हम उसको निगमन नहीं कर पा रहे हैं, या उसको उपनय नहीं ले जा पा रहे हैं, या हमारे पास कोई दृष्टांत ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो दैट इज अ न्यून वाक्य दोष। दैट इज अ न्यून वाक्य दोष मतलब कोई चीज कम है उस वाक्य में।
अधिक वाक्य दोष मतलब हम हमारे वाक्य में तो ये पूरे 5 चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारा फालतू इंफॉर्मेशन उसमें डाले हुए हैं। सो दैट इज अधिक वाक्य दोष। अधिक वाक्य दोष मतलब मैंने ये कहा कि पर्वतो वन्यमान, पर्वत के पीछे आग लगी है। क्यों? क्योंकि धुमस्तता, हेतु क्या है? धुआं आ रहा है। उसके बाद उदाहरण क्या है? यथा महानसम, जैसे चूल्हे से धुआं निकलता है। फिर उपनय क्या है कि या तो पीछे चूल्हा है या तो पीछे आग है। जैसे चूल्हे में आग है वैसे वहां भी आग होगी, इसीलिए ऊपर धुआं निकल रहा है। तो दैट इज उपनय। चूल्हे का उदाहरण पर्वत के पीछे ले जाना। और निगमन मतलब इसीलिए पर्वत के पीछे आग लगी है। तो ये पांचों चीजें हमारे वाक्य में हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो धुआं है ये ऊपर जाके बादल करेगा, काले घने बादल करेगा। फिर वो घने बादल जो हैं वो बरसेंगे, वो पानी आएगा और वो आग बुझ जाएगी। तो ये फालतू इंफॉर्मेशन है, हमको ये प्रूव ही नहीं करना। हमारी प्रतिज्ञा क्या है? हमारी प्रतिज्ञा है पर्वतो वन्यमान, पर्वत के उस पार आग लगी है। तो हमको प्रतिज्ञा हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन के अलावा फालतू का वर्थलेस इंफॉर्मेशन अपने वाक्य में प्रोवाइड करना इज अधिक वाक्य दोष। अनर्थक वाक्य दोष मतलब आप वाक्य बोल रहे हो लेकिन उसमें से एक भी वर्ड समझ में नहीं आता। एक भी वर्ड समझ में नहीं आता, ये अनर्थक वाक्य दोष है। या तो आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो जो समझ में ही नहीं आ रहे, या तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, मैं आपका लेक्चर ले लूं और मैं ऐसे लेक्चर ले लूं जैसे आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चाइनीज लोगों का इंटरव्यू होता है, तो इंडिया चाइना के वॉर के इसमें तो वो ऐसे बात करते हैं। तो दैट इज एन अनर्थक वाक्य। हमारे लिए वो अनर्थक है, भले वो दूसरे किसी के लिए अर्थक हो सकता है। तो आइदर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग और that words are not having any meaning। तो ये भी एक वाक्य दोष है। उसके बाद अपार्थक वाक्य दोष। अपार्थक वाक्य दोष का मतलब है कि उन वर्ड्स का मीनिंग तो है लेकिन साथ में अगर लिए गए तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। हर एक वर्ड का मीनिंग है लेकिन साथ में अगर वो वर्ड्स लिए जाएंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे मैं दूध स्कूल उड़ाऊंगा, मैं दूध स्कूल उड़ाऊंगा मतलब क्या है? मैं समझ में आया, उड़ाऊंगा समझ में आया, स्कूल समझ में आया, दूध समझ में आया, लेकिन इन सब का एक साथ कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो वी हैव 1 minute 32 seconds लेफ्ट। what I am doing is I am putting the, because we want to finish off this, I am putting the chat link। प्लीज पुट ऑन योर अटेंडेंस, देर विल बी नो मैनुअल अटेंडेंस। अगर किसी का अटेंडेंस लगा नहीं तो प्लीज यहाँ पर, इफ यू डोंट गेट द पेज ऑफ कंफर्मेशन, प्लीज यहाँ पर आप चैट बॉक्स में अपना ये छोड़ दीजिएगा। तो अपार्थक वाक्य का मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और पांचवा वाक्य दोष है विरुद्ध वाक्य दोष। विरुद्ध वाक्य दोष मतलब उसमें अलग अलग प्रकार आते हैं। जो दृष्टांत, अगर अगर लेक्चर एंड हो जाएगा तो वी विल टेक दिस विरुद्ध वाक्य दोष द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, और रादर विरुद्ध वाक्य दोष हम नेक्स्ट टाइम ही लेंगे। लेस देन 1 minute रह गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। आई विल वेट टिल दिस लेक्चर इज ओवर सो दैट किसी को अगर चैट बॉक्स में कुछ डालना हो तो डाल सकता है, और इफ चैट बॉक्स में नहीं आए तो यू कैन पुट मी अ व्हाट्सएप मैसेज।